Hello, book nerds. Welcome to Book Nerds Author Agency podcast, where we dive deep into the world of literature. I'm your host, Riya Manoj, and we have a very special guest, Mr. Nutan Tawakle. He is a qualified engineer, having studied more than 400 ancient Indian texts over the last 50 years. He has already authored three books. The last one was Understanding Sanatan Dharma, which is 4.5 star on Amazon and a bestseller already. So we are thrilled to have you on our show. Thank you so much, Ria, for having this podcast with me. And I'm really very happy that I'm having another podcast with Book Nerds. Thank you so much, sir. So, before we dive deep into your book, we would like to know more about you. Please tell something about your own journey. How did you started with, like you said, you have read more than 400 ancient books. How your journey began, please. You see, first of all, uh, I'm having this bug inside me to study ancient scriptures right from the beginning. I should say when I was in school. So, and I was also interested in sciences, and I was also interested in engineering. And by the 11th class, ours was the last 11th batch. So, by the time I finished, I had read all the science fiction books in our school library. So that was my interest in the sciences and engineering. And after completing my school, I got offers from two places, IIT and BIT Pilani. So, because BIT Pilani was near, so my parents said that, okay, you go to BIT Pilani. So I said, fine. And since then, I've been studying ancient Indian scriptures also. And the first book I bought was in 1973, and that was Kathopanishad. Yeah, that was Kathopanishad. And during my engineering, I was a secretary of Vivekanand Samiti. So it was a social organization. We were teaching the uneducated our mess servants. So it is from there we started. And then during that time, we used to organize visits by many eminent spiritualists from all over India. So once Swami Chinmayanand had come, and I had the pleasure to meet him personally and discuss things with him personally. So it's right since then when I started into studying these books, basically. ओके Yeah. सर बट जैसे हम लोग घर पे मैं हिंदी में भी बोलना चाहूँगी इस पॉडकास्ट में हाँ, सर जब हम घर पे कोई भी ग्रंथ रखते हैं तो वो देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस राइट कि हम गीता को पर्टिकुलर डे टाइम में नहीं पढ़ते या वो तो जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी आप ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस थे या आपने उसे अपनी लाइब्रेरी में रखे और उस वे में absolutely no. Absolutely no. There was absolutely no restrictions. And in fact, I used to buy books from the market and bring them when I came back from when I had finished my engineering. Then I started working in Delhi only. एंड उसके बाद मैं बुक्स लाता था एंड मैं पढ़ता था और उसमें घर मतलब पेरेंट्स जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी एंड दे वर इन फैक्ट हैप्पी दैट आई टू स्टडी ये सब बुक्स मैं पढ़ता था एंड because my job was outdoor job. It was a sales job. So I had the opportunity to move around all over Delhi. So I used to locate the stores and buy the books from there. नाइस तो इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी बिकॉज मैं बहुत सारी ग्रंथ ऐसे हैं जो मैं इसलिए नहीं ले पाती कि इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस के साथ आप फॉलो नहीं कर पाती
इस टाइम पे नहीं पढ़ना है या इस वक़्त नहीं पढ़ना है, तो उस वजह से कई I will tell you, there are certain ग्रंथ, कुछ कुछ ग्रंथ हैं जिनमें की रिस्ट्रिक्शंस हैं, एंड इवन आई कीप रिस्ट्रिक्शन, एंड बट देयर आर अदर, जो और ग्रंथ हैं उनमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे आपको अगर पुराण पढ़ना है, जी, एक तो होता है इंफॉर्मेटिव ग्रंथ, जो कि आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, जैसे गीता है, रामायण है। लेकिन जब उसका आपको अनुष्ठान करना है, अब जैसे श्री दुर्गा सप्तशती है, अगर आपको श्री दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करना है, तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यू हैव टू, एंड एंड इवन एज सच दैट पर्टिकुलर, ये जो ग्रंथ है, श्री दुर्गा सप्तशती, ये आई रिवेयर इट वेरी हाई एस्टीम, एंड वी मस्ट गिव फुल रिस्पेक्ट। इसको पूरी प्रतिष्ठा से हमें इसे हैंडल भी करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। तो इस तरह से बस निर्बाज़ भी है और उसमें प्रॉपर रूल्स हैं कि आप अगर उसका कोई मंत्र भी चैंट कर रहे हो तो उसको किस स्पीड से करना है। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर दैट आल्सो। दुर्गा यस, सप्तशती में। सो सर्टेनली। आई दे मतलब देवी का अच्छा, लेकिन जो कुछ ग्रंथ हैं, जैसे कि अगर आपको जैसे रामायण है, इसमें जैसे अगर आपको पास करना है इसका, तो आपको इसको अलग तरह से करना पड़ेगा। बट अगर आपको इसको समझना है, तो इसको आप, इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है, आप नॉर्मल रीडिंग में, जैसे एज ए नॉवेल ऑल्सो आप इसे पढ़ सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज्ञान है। एक तो रामायण में और श्रीमद् भागवत गीता में, इसमें इट इज़ फुल ऑफ नॉलेज। फिर रामायण हमारे घर में हमें रखना अलाउड नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता और दुर्गा सप्तशती और गीता मैं खुद पढ़ती हूँ। तो मैं जब ये पढ़ रही थी तो आई रिलेट टू मैनी पार्ट्स ऑफ मैनी पार्ट्स। ये मैं एंड क्वाइट अ लर्निंग आपके नज़रिए से सारे पूरे को पढ़ना और उसको समझना। एंड आई लव द एनालॉजीज यू हैव यूज्ड इन द एंटायर स्पेशली द मोबाइल। मतलब आपने हम को मोबाइल से कंपेयर किया है। हाउ डिड यू कम अप विद दिस एनालॉजी? नो, इट इज़, सी, अ, ये ब्रह्म को कंपेयर नहीं करा है मोबाइल से, बट मोबाइल जो है, उसको हमने अपने शरीर से कंपेयर करा है। जो फिजिकल बॉडी है हमारी, उसको आप मोबाइल समझिए। और जिस तरह से मोबाइल फ़ोन टॉवर से और सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड रहता है थ्रू अ मीडियम। मीडियम क्या है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो टॉवर से जो आता है फील्ड, उसके थ्रू जो मोबाइल है वो टॉवर से, सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड रहता है। इसी तरह से जो हमारा मनुष्य का शरीर है, ये भगवान से, ब्रह्म के माध्यम से कनेक्टेड रहता है। कैन यू अंडरस्टैंड? ये भगवान और हमारे बीच का जो मीडियम है, वो ब्रह्म है। जैसे कि मोबाइल और सर्विस प्रोवाइडर के बीच का मीडियम आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसी तरह से ह्यूमंस और भगवान के बीच का जो फील्ड है, वो है ब्रह्म। एंड ब्रह्म जो है वो अब साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि ये होता है। ये भी अब प्रकट हो ही गए। उनको आपने हिग्स फिल्ड से कंपेयर की। सो आई लव दैट एनालॉजी आल्सो बट प्लीज एलाबोरेट फॉर आवर ऑडियंस टू। यस, सी, जैसे जो ब्रह्म है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि एक और भी फील्ड है, जो कि है चेतना का फील्ड, कॉन्शियसनेस का फील्ड। ओके, श्रीमद् भागवत गीता ने बताया है। अच्छा, दूसरी तरफ जो
श्री दुर्गा सप्तशती है, उसमें जब देवताओं ने माता से पूछा कि आपका स्वरूप क्या है? तो माता कहती हैं कि अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। ओके? अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, कि मेरा जो स्वरूप है, वो ब्रह्म जैसा है और ब्रह्म जो है वो फ़ील्ड है। और तो जो माता जो फ़ील्ड्स कंट्रोल कर रही हैं, वो चेतना का फ़ील्ड है, कॉन्शसनेस का फ़ील्ड है। जबकि माता स्वयं, ओके, माता स्वयं कहाँ रहती हैं? मणिद्वीप में, जो कि आपको कहीं भी आपने सुना नहीं होगा, कहीं भी पढ़ा नहीं होगा मणिद्वीप का नाम। लेकिन जो ये है श्रीमद् देवी भागवत पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में बहुत डिटेल में बताया है मणिद्वीप, जहाँ पे कि माता का निवास है। तो वहाँ से माता कंट्रोल करती हैं ये कॉन्शसनेस का फ़ील्ड, जो कि ब्रह्म के फ़ील्ड से पहले है। यू अंडरस्टैंड? जी सर। सर मैं इनफैक्ट आपने मणिदीप की बात करी है तो आपने हमारे एक जगह मुझे एग्ज़ैक्टली पेज नंबर याद नहीं है, पर आपने एक जगह मेंशन किया है कि आफ्टर डेथ वी आर सेंट टू हुँ, देवलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक एंड मणिद्वीप व्हिच इज़ देवीलोक। तो मैं आपसे ये इनफैक्ट इसके मैं पूछने वाली थी, आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया मुझे। मैंने दीपिका भागवत बहुत छोटी थी तब पढ़ा था, मतलब आई थिंक मैं शायद 10 या 11 साल की थी। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा याद भी नहीं है। हाँ, देवी भागवत और भागवत पुराण ने बहुत अच्छे से कैसे इस ब्रह्मांड हुआ और जो श्री कृष्ण में और ब्रह्मा, विष्णु, महेश में डिफरेंस है, वो भी बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके समझाया हुआ है क्योंकि वी ऑफन गेट कन्फ्यूज़ इन दीज़ थिंग्स। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये दोनों पढ़ने में और भागवत के भी आपने काफ़ी अंश इसमें यूज़ किए हैं, गीता के साथ। हाँ, इन इन दोनों ग्रंथों में पूरी क्रिएशन बहुत अच्छी तरह डिफाइन करी हुई है। दैट इज़ द थिंग, श्रीमद् देवी भागवत पुराण और भागवत पुराण। राइट। सर मणिद्वीप के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे आप? इसी मणिद्वीप जो है, वो है माता का रेज़िडेंस कहना चाहिए, उनका एबोर्ड कहना चाहिए, उनकी यूनिवर्स जो है वो मणिद्वीप है, जहाँ पे कि माता का निवास है। अब इसमें एक बहुत अच्छा श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ही है कि जब उन्होंने एक यूनिवर्स बनाई, तो उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश को का सृजन हुआ। तो जी। माता जो हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपने विमान में बिठाकर उन्होंने उनको करोड़ों यूनिवर्सेस के दर्शन कराए। ये देवी भागवत पुराण में लिखा है। जी। तो उस समय जो ब्रह्मा ब्रह्मा जी हैं स्पेशली, हुँ। वो बहुत अचंभित हो गए कि मेरे जैसे कितने और ब्रह्मा हैं, करोड़ों और ब्रह्मा हैं। तो इससे बहुत वो विचलित हो गए। तो तब माता ने उन्हें बताया कि इस सृष्टि में तो करोड़ों ब्रह्मांड हैं और हर एक ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। और ये और ग्रंथों में भी बताया हुआ है, सिर्फ़ इस ग्रंथ में नहीं है, ये कई और ग्रंथों में भी बताया हुआ है कि हर एक ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। ये मेरे ख़्याल श्रीमद् भागवत पुराण में भी ये बताया हुआ है। जी। सर तो हम ये जो आपने कहा कि हर यूनिवर्स के अपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, हम इसे मल्टीवर्स से कंपेयर कर सकते हैं? certainly ये मल्टीवर्स ही है, जो कि एक वेस्टर्न टर्म है, बट एक्चुअली ये तो हमारे पुराणों में दसियों हज़ार वर्ष पहले ही लिखी गई है कि करोड़ों यूनिवर्सेस हैं और ये ऐसे ही बनती बिगड़ती रहती हैं, जैसे कि समुद्र में बबल्स जो जैसे बनते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं, इसी तरह से जो यूनिवर्सेस हैं, वो इस ब्रह्मांड में बनती रहती हैं और विसर्जित होती रहती हैं।
आपने एक जगह पितृदोष मेंशन किया है, वेरी और आपने ये लिखा है कि if a wealth by a person is enjoyed by the person's family members and the person's son, daughter, grandson, granddaughter, etc. So, and that wealth is not earned by good means, the generation will also suffer, and that is known as Pitrudosh, right? Yes, yes. सुनते वो मैंने मैं अभी तक से मैं ये समझती थी कि जो श्राद्ध पक्ष में हम पितरों का तर्पण करते हैं, अगर हमसे उसमें कोई कमी रह जाती है या हम नहीं करते तो हम पे पितृदोष आता है। बट दिस इज़ एंटायरली अ न्यू थिंग फॉर मी। इसी जो अभी जो है आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो जैसा वर्ल्ड चल रही है, कि यहाँ पे हम ना पाप की जो इम्पोर्टेंस है, कि पाप करना कितना गलत चीज़ है, ये हम भूल गए हैं। तो खुल के जो है सब लोग जो है ना पाप कर्म में पाप कर्म करते हैं कि भाई और अब पाप कर्म करने का जो नुकसान है, जो उसका उसकी हानि है, वो जो पाप कर रहा है, वो तो भुगतता ही है। बट उसके साथ में उसके जो बच्चे हैं, और उसकी जो जनरेशन्स हैं, उनको भी भुगतना पड़ता है और वो ही पितृदोष होता है। अच्छा, जो श्राद्ध कर्म हम करते हैं, वो पितृदोष की निवृत्ति के लिए नहीं होता। श्राद्ध कर्म जो है, वो पितरों की तृप्ति के लिए होता है। कि श्राद्ध कर्म जो है, वो उनकी तृप्ति के लिए है। आपके जो पितर हैं। जबकि जो पितृदोष है, उसके लिए आपको और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो if somebody is committing a sin, then you should understand that अभी कई लोग जैसे कहते हैं कि भाई हम तो बच्चों के लिए हम ये चोरी कर रहे हैं, ये कमा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बट ठीक है, वो एक्चुअली बच्चों के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, उससे बच्चों के लिए नुकसान ही होगा, क्योंकि वो चोरी करना, भ्रष्टाचार करना वो सिन है, इट इज़ अ सिन। और बच्चे जो है उस पैसे का उनको नुकसान ही होगा, उनको फ़ायदा नहीं होगा। बट लोग जो है वो रियलाइज़ नहीं करते इस चीज़ को, और आजकल खुल के धड़ल्ले से लोग सिन्स करते हैं। तो पर्टिकुलरली इसके इस पर्पज़ के लिए मैंने उसमें ये अ, लिखा है कि पीपल शुड रिफ्रेन फ्रॉम कमिटिंग सिन्स, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और जो सिन्स हैं, दे आर द प्राइमरी कॉज़ ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। ओके? जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका जो प्राइमरी कॉज़ है, वो है सिन्स, पाप कर्म। और ये एक ग्रंथ नहीं, मेरे ख्याल से जितने भी ग्रंथ हैं, हर एक ग्रंथ में ये कहीं न कहीं मेंशन है ही, कि जो है ना पाप जो आप करें। कि नेवर यू पितृदोष का मतलब ये होता है, ये मुझे नहीं पता था। पितृदोष का हाँ, मतलब मैं अब तक और ही समझती थी, इसलिए मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। हाँ, वे एंड आई एम ग्लैड पितृदोष आई गॉट टू नो। यस। पितृदोष इज़ एंड सर इज दिस ओके सर, और आपने जिस तरह से धर्म को डिस्क्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। आपने धर्म को 3 भागों में बाँटा है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ये सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस और द वर्क यू डू, दैट इज़ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो आप कर्म कर रहे हो उसमें आप कैसे, और तीसरा है स्वधर्म। सर स्वधर्म को मैं आपसे सुनना चाहूँ। हुँ, स्वधर्म को मुझे आपसे सुनना है। जो हर एक अ, हर जो मानव है, हर मनुष्य जो है, उसको बाय बर्थ इंटेलिजेंस मिली हुई है कुछ। जी। ओके? हुँ। तो वो इंटेलिजेंस जो है, जो बुद्धि जो है, वो 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ बेसिक
जो है, जो जिनको अभी 5 वर्णाश्रम कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वो एक्चुअली आपकी एक बेसिक जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। जैसे आपके मोबाइल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है? मोबाइल उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चलेगा। अब एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, सैमसंग का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह से अलग-अलग मोबाइल्स के लिए अलग-अलग उनके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और एंड्रॉइड है। जी, तो इसी तरह से जो मनुष्य हैं, उनके 4 ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। आप पूरी वर्ल्ड में देख लीजिए, किसी भी कम्युनिटी में देख लीजिए, किसी भी कंट्री में देख लीजिए, ग्लोबली हर जो मनुष्य है, वो 4 तरह से काम करता है। एक एक है कि जो पढ़ाई में, स्टडीज़ में, रिसर्च में जाता है, दैट इज़ बासिक। दूसरा है जो सिक्योरिटी में, जैसे पुलिस में, उसकी इन्हेरेंट इच्छा होती है कि मैं मिलिट्री में जाऊँ, मैं उसमें जाऊँ। ये अंदर से आती है, दिमाग में बिल्ट इन है ये। तीसरा है बिज़नेस क्लास। अब जो बिज़नेस क्लास है, उनके अंदर बिल्ट इन अ, उनका माइंड होता है। अब जैसे गुजराती हैं हमारे भाई, वो बोर्न बिज़नेसमैन होते हैं। उनके जन्म से ही जो है ना, उनका माइंड बिज़नेस में चलता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरा माइंड बिज़नेस में नहीं चलता। मैं आई कैनॉट लाइक थिंक लाइक व्हाट बिज़नेसमैन थिंक। जैसे बिज़नेसमैन की थिंकिंग डिफरेंट होती है और इन चारों की अच्छा जो चौथा है वो है जो कि इन तीनों को सर्व करता है, जो कि सर्विस में रहता है। वो उनको उसको शुद्ध बताया हुआ है। जबकि चारों जो है हर एक सोसाइटी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। जो सर्विस में है, सर्विस क्लास जो है, वो भी ही उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी 3 क्लासेस है। सर्विस क्लास के बिना बाकी 3 क्लासेस नहीं चल सकती। तो ये जो है भगवान कृष्ण ने इसको धर्म बताया है, श्रीमद् भागवत गीता में। कि ये आपका धर्म है और जो आपकी बेसिक बुद्धि है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो जो है ना आपको प्रॉब्लम होगी। सीधी-सी बात है, मतलब इट इज़ वेरी सिंपल। अब आपका माइंड तो मेरा माइंड तो जैसे स्टडीज़ में है, रिसर्च में है और मैं चलने पड़ूँ बिज़नेस करने, तो आई विल नॉट बी सक्सेसफुल इन बिज़नेस। तो दिस इज़ अ बेसिक बेसिक रूल, दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड। और जो आजकल जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी वर्ण आश्रम की, वो पूरी तरह से विकृत हो चुकी है, मतलब गलत समझी जाती है। अच्छा, दूसरा इसमें आया स्वधर्म। ये पहला वाला भी स्वधर्म है और ये भी दूसरा जो है वो है स्किल। यू सी हर स्किल, सी एवरीबॉडी हैज़ अ स्पेशल स्किल, ओके? जैसे कि मेरा इंजीनियरिंग करने का, साइंसेस पढ़ने की स्किल है, दैट इज़ माय आई हैव अ बेसिक स्किल। अब अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, आई कैन डिज़ाइन सर्किट्स इन माय ब्रेन, आई कैन डिज़ाइन द कंप्लीट सिस्टम इन माय ब्रेन, इट कम्स टू मी नेचुरली, ओके? सिमिलरली कोई जैसे कारपेंटर है, अब उसकी वो स्किल है, वो उसमें हिज़ माइंड वर्क्स इन दैट। इफ समबडी इज़ अ व्हाट डू यू कॉल इट अकाउंटेंट, ये उसकी स्किल है, राइट? तो नेचुरली कम्स टू हिम। जैसे जो हमारे अग्रवाल कम्युनिटीज़ है या जो बहुत कम्युनिटीज़ हैं जिनका माइंड उसमें अकाउंटेंसी में चलता है, बहुत अच्छी तरह चलता है उनका माइंड। तो ये स्किल है। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या है कि देयर कैन बी इन्यूमरेबल स्किल्स, अनगिनत स्किल्स हो सकती हैं। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि जो जैसे कंप्यूटर्स हैं, इनमें कितनी स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स आ गई हैं। अच्छा, आज से 1000 साल पहले लिमिटेड थी, कुछ स्किल्स थी जैसे पॉटरी की स्किल, कारपेंटरी की स्किल या किसी गोल्ड स्मिथ या आयरन स्मिथ की स्किल, वो लिमिटेड थी।
लेकिन आजकल जो है आप देखिए कितनी स्किल्स है, ठीक है? तो ये ये भी जो है ये स्वधर्म है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं काम कर रहा हूँ केमिकल इंजीनियरिंग में, तो मैं सक्सेस नहीं हो सकता। तो आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू माय माइंड, इट इज़ सिंपली दैट। और उसको धर्म बताया है, भगवान कृष्ण ने उसे धर्म बताया है। हम्म। सर, अगर हमें धर्म की बात की है तो हम कर्म की भी बात करेंगे। तो श्री कृष्ण का कहना है कि सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और अगर हम उधर दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। पर कर्म को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हो गए हैं। हुँ, कई बार कर्म को ड्यूटी से कंपेयर किया जाता है, कई बार कर्म को डेली रूटीन से कंपेयर किया जाता है। तो आप थोड़ा-सा उस पे प्रकाश डालेंगे कि एग्ज़ैक्टली कर्म क्या होता है? हाँ। जी सर। अब आप देखिए कि अभी हमने जो है धर्म डिस्कस करा था, कि जो कि हमारी इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, हम उसके हिसाब से कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हुँ, वो हम अपनी बुद्धि के हिसाब से कर रहे हैं, इंटेलिजेंस से कर रहे हैं। जी। अच्छा, इन इन 2 से पहले भी मैंने एक और धर्म बताया, मूल धर्म, कि मूल धर्म क्या है? मूल धर्म में हमारे 5 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग ह्यूमन, ठीक है? जो आप जो भी कर्म कर रहे हैं, वो ये 5 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर होने चाहिए, इनसे बाहर नहीं होने चाहिए। जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं, दे शुड कन्फर्म टू दीज़ 5 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, एंड आल्सो यू शुड वर्क अकॉर्डिंग टू योर इंटेलिजेंस। ओके, दिस इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। ओके? एक तो आपका बेसिक रूल बताया है कि 5 जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट सत्य का आचरण है। ओके? सबसे पहला जो है सत्य का आचरण है, दूसरा है अहिंसा है, तीसरा है ब्रह्मचर्य है, चौथा है चोरी नहीं करना, पाँचवा है किसी की वस्तु ना हड़पना। तो ये तो बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, मूल धर्म है कि हमारी जो ये मनुस्मृति उसमें भी बताए हुए हैं ये पाँचवें पाल, और श्रीमद् भागवत गीता में भी ये बात बताए हुए हैं मूल धर्म। तो ये तो बेसिक आपका वो डिसाइड करते हैं कि आप जो भी डिसीजन लें, वो इसके बेसिस पे लें। और फिर जो आप कर्म अपना निष्पादित करते हैं, वो आप अपनी बुद्धि के अनुसार करें। ओके? सर, ये बुक बहुत डीप है और मुझे कन्वर्सेशन में बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरे को हुँ। बहुत सारे क्वेश्चन पूछने थे, पर मैं लास्ट 2 क्वेश्चन्स ही ले पाऊँगी क्योंकि हम शायद हमें एक और पॉडकास्ट करना पड़े शायद इस बुक पे। तो आपने जो साधना और ध्यान को एक्सप्लेन किया है, उसमें आपने मंत्रों का भी ज़िक्र किया है और आपने मंत्रों का उच्चारण का भी विवरण किया है। आपने बीज शब्द आपने सीड वर्ड भी कहा है। तो जो बीजक हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपने वो कहाँ से सीखा था? बिकॉज़ रीडिंग अ बुक इज़ एंटायरली डिफरेंट, पर मंत्रों का उच्चारण एक अलग कला है, उसको सीखना पड़ता है। वो आपने कहाँ से सीखा? जी, मंत्र जो हैं वो सारे संस्कृत लैंग्वेज में हैं, और संस्कृत लैंग्वेज भी मैंने कोई फॉर्मली नहीं पढ़ी है, सीखी नहीं है। मैंने ग्रंथ पढ़ के ही संस्कृत लैंग्वेज सीखी है। और जैसे श्री दुर्गा सप्तशती है, इसका पास में आप समझ लीजिए 1998 से कर रहा हूँ मैं, 1998, for 26 years I've been reciting। तो इसमें शुरू में प्रॉब्लम आती है, बट लेटर ऑन यू गेट यूज्ड टू इट। पर इसमें उच्चारण बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो
वास्तव में मंत्र क्या करते हैं? मंत्र जो है ये आपकी बुद्धि को रिप्रोग्राम करते हैं। ये मैंने अपनी बुक में बताया है। ओके? जो मंत्र हैं वो आपकी बुद्धि को रिप्रोग्राम करते हैं। जो आपकी बुद्धि पाप कर्मों के कारण भ्रष्ट हो जाती है। ये भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि ये जो बुद्धि है वो पाप कर्म करने के कारण भ्रष्ट हो जाती है, मतलब करप्ट हो जाती है। जैसे आपके कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो वायरस से करप्ट हो जाता है। ओके? इसी तरह से अगर आपके मन में लोभ आ जाए, लालच आ जाए, वासना आ जाए, तो वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो आप गलत काम में जाते हैं, आप पाप कर्म करते हैं। ओके? सो जी। अब जो भ्रष्ट हो चुकी है बुद्धि, उसको कैसे ठीक करें? ये सिर्फ़ सनातन धर्म में ही बताया गया है कि भ्रष्ट बुद्धि को कैसे ठीक करें। तो उसके लिए एक तो स्तोत्र दिए गए हैं, संस्कृत में स्तोत्र बताए गए हैं और दूसरे हैं ये मंत्र। सारे मंत्र नहीं, कुछ मंत्र हैं, पाप की निवृत्ति के लिए जो बताए गए हैं, वो स्तोत्र बताए गए हैं। और यहाँ तक कि जैसे यदि आप ये पढ़ें कुलानस तंत्र पढ़ें, तो उसमें बताया गया है कि ये जो गंगा में डुबकी लगाते हैं, ये नहाते हैं नदियों में, इससे कुछ नहीं होगा। इससे पाप कर्म नहीं धुलते। उसमें लिखा है, कौल तंत्र है, उसमें लिखा है कि जो लोग डुबकी लगाने जाते हैं गंगा जी में, और अगर गंगा में डुबकी लगाने से किसी को मोक्ष मिल जाए, तो जो उसमें इतने कछुए और मछली हैं, उन सबको मोक्ष मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे पाप कर्म की, तो उसके लिए जो बताया गया है वो है स्तोत्र, वो भी संस्कृत में उच्चारण करें तब। क्योंकि जो संस्कृत में आप स्तोत्र उच्चारण करेंगे, तो उससे आपकी बुद्धि जो है वो, उसके वायरस जो हैं वो हट जाएँगे। ओके, यू अंडरस्टैंड? तो ये जो स्तोत्र हैं और मंत्र हैं, ये बुद्धि के वायरस, एंटीवायरस हैं ये। हमारी मानव बुद्धि के एंटीवायरस हैं। ओके? तो पर अभी क्या हो रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में से जैसे संस्कृत हटा रहे हैं। मतलब दे हैव पहले थर्ड लैंग्वेज के तौर पे हम पढ़ते थे, नाउ इट्स एन ऑप्शनल लैंग्वेज। तो उसके लिए आप हाँ। कुछ कहना है? इसी अभी जो है ना, जो वेस्टर्न नैरेटिव है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का नैरेटिव है, वो संस्कृत को बता रहे हैं, वो संस्कृत को एक काव्य के रूप में समझा रहे हो कि काव्य है सिर्फ, इसके आगे इसका कोई यूज़ नहीं है। और संस्कृत जो है डायलेक्ट की भाषा है जो कि बहुत पहले ख़त्म हो चुकी। बट जो मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा है कि संस्कृत जो है वो डायलेक्ट की बातचीत करने की भाषा नहीं है। संस्कृत जो है ये आपके बुद्धि को प्योर करने की भाषा है, आपके बुद्धि की प्रोग्रामिंग करने की भाषा है, और ये भगवान से संपर्क करने की भाषा है। और ये सारी नॉलेज सिर्फ सनातन हिंदू ग्रंथों में ही है। ये दुनिया में और कहीं नहीं है ये नॉलेज। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज आज की डेट में अगर कोई है, वो संस्कृत लैंग्वेज है। और आप देखेंगे कई अमेरिकन स्कूल्स, यूरोपियन स्कूल्स, वहाँ पे संस्कृत पढ़ा रहे हैं, कंपल्सरी है। वहाँ पे डेली उनको संस्कृत प्रेज़ कराते हैं। और इंडिया में हम इससे अलग होते जा रहे हैं। तो जो इंडियंस हैं, हम हिंदू हैं, हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि कितनी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है ये। राइट सर। और भगवान से संपर्क करके तब हम अपने जीवन की कितनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, साधनाओं के द्वारा। ओके? तो हमें शायद एजुकेशनल सिस्टम से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि संस्कृत को वापस हमारी थर्ड लैंग्वेज के तौर पे कंपल्सरी। कंपल्सरी, जो थर्ड लैंग्वेज नहीं, इसको फर्स्ट लैंग्वेज बना देना चाहिए। संस्कृत को कंपल्सरी कर देनी चाहिए। करना चाहिए।
सर देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, वास्तु हो या एस्ट्रोलॉजी हो या आपने जो और रिलीजन से कंपेयर किया हो, बट नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो आप अगर एक की टेक अवे चाहें कि इस बुक से हमारे ऑडियंस ले तो वो क्या होगा? कि अभी जो वर्तमान हिंदू समाज है, वो अंग्रेज़ों के पीछे भाग रहे हैं। वो आँख बंद करके अंग्रेज़ों के पीछे भाग रहे हैं कि जो अंग्रेज़ों ने कह दिया तो वो ठीक है, लेकिन जो हमारी ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो ठीक नहीं है। तो ये हम हिंदू समाज हाँ, हमें हिंदू समाज को ये our society we have to understand like we should not run blindly after the Western society. Okay? We should look into our own foundation. और हमारी जो फाउंडेशन है, वो क्या है? वो हमारी ये सारी नॉलेज है। तो आज अगर हमारा समाज खड़ा है, if our society is standing today, it is because of this knowledge. Okay? So we have to become aware. We have to become aware and give full importance to the knowledge contained in our scripture. Right. Okay, that is what I want to convey. So it was wonderful talking with you and this is Sanatan Dharma, a complete scientific analysis. मैं आप सभी से चाहूँगी कि ये बुक ज़रूर पढ़ें और सर मुझे इंतज़ार रहेगा इसमें आपके साइन का। आई विल वेट फॉर योर साइन। मुझे बहुत क्रेज़ है अब दिस टाइम। I'm very thankful to Book Nerds and for organizing this podcast. We had really great time, sir and me, discussing Sanatan Dharma. Hope you all enjoyed it as well. And we'll come up with more such podcasts. Keep watching, keep learning, and stay tuned to the Book Touch or the podcast agency. Thank you so much. Thank you so much.